Hello, namaste everyone. I'm Swati Gupta, parenting coach and child psychologist, and welcome to the series 2 of episode 12 of Wisdom Waves Wednesday. As a mother of two, I've spent years watching children grow, learn, and play, and breathe in the same air that surrounds all of us. My daughter waking up in blocked nose every winter, my son coughing longer than usual. I used to feel this is seasonal, but then I realized it wasn't seasonal or normal. It was environmental. And when I read that the world is now facing what experts call it global lung health crisis, it honestly shook me. In 2023 alone, 7.9 million people died due to air pollution. Isn't that crazy? And because children breathe faster, inhale more air per kg of body weight, and their lungs are still developing, the damage is deeper, faster, and long lasting. And that's why today's conversation is super important. So, with us, we have Dr. Harish Bhatia. Thank you so much, Doctor, Thank you. for accepting our invite and being there. So it is so overwhelming to see you, but at the same time, we are going to talk in something which is super serious, which is are our children breathing safely and the hidden air crisis. Thank you. Thank you. So, before we begin, I want to share what Dr. Bhatia, who Dr. Bhatia is and what he does. So, he's a senior consultant pulmonologist. He's a founder director of Rebreathe Clinic. He's an expert in asthma and allergies across all age groups. So, thank you so much for being there and thank you so much for accepting our invite because this episode is for every parent, every teacher, and every caregiver because air our children is breathing or they are breathing today is shaping the adults they are going to become. Yes. So on that note, I'm going to have, I mean, I have a lot of questions, but I've broken down into top 6 questions which I felt was relevant and important. So can I have your permission to just Yes, jump into ma'am. Yes, questions? yes, yes. Mm. Perfect, perfect. So, doctor, in my work, I see like more kids coughing for weeks, reacting for dust, and struggling for morning sports because my school is such, like my daughter's school is such, they have morning sports. And then when I read that 99% of people breathe unsafe air, Yes. so compared to what was decades ago, are our children in cities today at a much higher risk of lung problems? What changes are you seeing? Ma'am, first of all, I would just begin my I'm on awareness, I would say, session. So Mhm. without even realizing, everybody, majority of the people, they check weight every day, and they just take the amount of the calories, ki how much calories I am taking, how much water I am drinking, but without even realizing that we are breathing close to 23,000 times in a day. So Mm. just imagine, if we take around 12 to 16 breaths in a minute, it is Mm. close to 23,400. And Huh. when actually we start, we go outside in a pollution which is around 400, 500 times, and when we do the workout, it can reach up to 46,000, even more than that. So just imagine the amount of air which is going to go inside the lungs. So Hmm. now I'll just break it into, इतना सारा hype है ना कि PM 2.5, PM 0.1, PM 10, PM 1, ये क्या है, क्या भला क्या है ये पीएम? सब लोग बोलते हैं कि पीएम इतना बढ़ गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, तो सब लोगों का दिमाग झन्ना गया कि पीएम है क्या। Mm. तो Correct. सबसे पहले तो इसको ना साइंस समझते हैं कि साइंस क्या है। तो सबसे पहले मैं हवा के कॉन्स्टिट्यूएंट्स बताता हूं आपको। जो हमारी हवा है, इट इज 78% ऑफ द एयर इज अ नाइट्रोजन, विच इज ऑफ नो यूज टू अस, जो हमें Correct. भगवान ने दिया, नेचर ने दिया है। अनदर एंड 21% इज द ऑक्सीजन, राइट। सो Huh. ऑक्सीजन भी कांस्टेंट है, अगर उसमें PM 2.5 होएगा, जो भी होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नाउ द रिमेनिंग पार्ट इज अप्रोक्सीमेटली 1%। उसके अंदर इट इज
उस 1% का जो बचा 0.97% is the argon, which is again of no use. Now Okay. the remaining gases, that is 0.03% is the carbon dioxide, sulfur dioxide, nitrogen dioxide. तो हम लोग जिंदगी में ना वो बड़ी बातें करते हैं, इन छोटी गैसेस के बारे में बात ही नहीं करते. सो Hmm. व्हीकुलर एमिशंस, डस्ट एमिशंस, फैक्ट्री का जो हो रहा है, उसके बाद everything is contributing to that 0.03%, because in a way what we are inhaling is that 0.3%, 0.03%, which is going inside the lung, because oxygen तो same है, oxygen तो नहीं बदलेगा. अब हाँ. उसके अंदर now we talk about the PM 2.5. PM 2.5 क्या है? हमारा बाल है, इसकी बाल की जो थिकनेस है, जिसको मोटाई बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में, इट इज 100 माइक्रॉन्स. ठीक अगर है. आप उसको 40 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, it is हाँ. going to be 2.5, and which probably you cannot see from your own eyes. Naked eyes. हाँ. Imagine, that is exactly the PM 2.5. You can't see, and it will go inside deeper down the lungs, and it will हाँ. affect everyone, right from the pregnant ladies, क्योंकि बच्चा तो उनके पेट में है, क्योंकि वट एवर शी इज ब्रीदिंग, इट इज गोइंग टू गो इनसाइड. क्योंकि बच्चे के पास सांस लेने का एक ही तरीका है कि जो माँ का जो ब्लड है, जिसके अंदर हाँ. ऑक्सीजन खुली हुई है, वो अंदर जाएगी. तो इट विल नॉट अफेक्ट दोज हु आर ऑन द प्लैनेट, इट विल अफेक्ट दोज हु आर इनसाइड द वूम्ब. इमेजिन द इम्पैक्ट इन द डेली लाइफ्स. My या God. That is so, so sad and that is so serious. I mean, या you're right. You started very beautifully by saying that हम सबकी बात करते हैं, हम कैलोरीज इनटेक, हेल्दी फूडिंग हैबिट, हम अपना वेट क्या है, हम पानी कितना पी रहे हैं, बट एक्चुअली हम ब्रीथ कितना कर रहे हैं और कितनी बार वो हमें किसी को ब्रीथ. पता है नहीं. एंड इमेजिन इट इज जस्ट वॉलेंटरली, हमें इसके बारे में रियलाइज भी नहीं है. We don't हाँ. even notice, we do not even notice, and we should be. Imagine, आपका जो हार्ट है वो एक दिन हाँ. 1 मिनट में 60 टाइम्स बीट करता है. हम लोग वाह. जो ऐसी चीजें हो रही हैं, वी डोंट इवन थैंक टू द नेचर. हम लोग ना भगवान को धन्यवाद करते हैं, ना हम नेचर को धन्यवाद करते हैं कि इट इज 21% ऑक्सीजन दैट. और मैं राइट. आपको एक और फैक्ट बताता हूँ. 99% of the oxygen of that 21% is coming from the marine life. It is not through the पेड्स. ये पेड़ हाँ. पौधों से नहीं आ रही. अच्छा. 99% of the oxygen is coming from the marine life. जो मरीन, जो हमारे समुद्र हैं, जिसके हाँ. अंदर अंदर वो है, वहां से सारी ऑक्सीजन हमें मिलती है. और वाह. हम क्या कर रहे हैं, प्लास्टिक यूज करते हैं, और सारा का सारा कूड़ा करकट वर्कट या तो यमुना में फेंकते हैं दिल्ली में, और वो अल्टीमेटली दैट यमुना इज गोइंग टू गो इनटू दी सी, और सी के वाह. बाद वो ओशन में जाएगा, और सारा का सारा हम वहां पे सत्यानाश कर रहे हैं. बस हमारा एक ही तरफ ध्यान है कि पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ. सब इसके बारे में बात करते हैं. सब बात ही नहीं करते कि समुद्र के अंदर आप कभी भी, वेन एवर यू गो टू मुंबई, यू गो टू एनी ऑफ दी, हाँ. आई मीन जो सी, मैं बात करूंगा दुबई की, जो कि हाँ. उनकी कोस्टल लाइन है. जस्ट चेक द क्वालिटी ऑफ वाटर. एक बार वाटर की क्वालिटी चेक करो कि वो कितनी ऑक्सीजन जनरेट करता है, एंड नो बडी टॉक्स अबाउट इट. इसके बारे में कोई बात नहीं करता. हाँ. एक्चुअली अभी मैं भी, आप जब बोल या रहे हो तब मैं सोच रही हूँ. अच्छा, हाँ, मतलब एक्चुअली वी हैव नेवर स्पोकन, आई हैव नेवर थॉट अबाउट इट. हम भी जब बच्चों को सिखाते हैं तो व्हाट डू वी से कि हाँ पेड़ लगाओ, बेगा पेड़ हमें लगाओ. ऑक्सीजन चाहिए, हमें यस. ऑक्सीजन चाहिए, बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द फैक्ट दैट what about the marine life, what about the thing which is giving us the maximum oxygen. यस. यस. एंड इमेजिन, आपको मैं बता रहा हूं, उनको मार्शलैंड्स भी बोलते हैं लोग टेक्निकली, हाँ. और हम सिर्फ बोलते हैं. तो सबसे पहले बच्चे को ये सिखाओ कि प्लास्टिक नहीं यूज करना. तो हाँ. प्लास्टिक इज द कल्प्रिट, एंड इट राइट. हैज टच्ड एवरीवनस लाइफ. इमेजिन, हम जो भी अगर कॉस्मेटिक्स यूज करते हैं, हम कुछ भी यूज करते हैं, कि इट इज ऑल कमिंग फ्रॉम द प्लास्टिक्स. एंड वी हाँ. आर, अभी हाँ. अभी दिल्ली सरकार या भारत सरकार भी बहुत करती है कि हमने सिंगल यूज प्लास्टिक बैन कर दिया है, सब कुछ हाँ. कर दिया है, बट नथिंग हैज बीन डन ऑन द ग्राउंड लेवल. हाँ. हाँ. हाँ, पीपल आर ट्राइंग बट ऑब्वियसली मतलब एक बड़ा चेंज आने के लिए टेक्स टाइम. यस. So doctor, tell me, like you said that 99% of oxygen which comes from marine, can you break that down? Why do you say that? And for people who do not know what exactly we are मैम, talking मरीन लाइफ के अंदर वो एल्गी होती है, जिसको एल्गी बोलते हैं, about. जिसको जिसको हम बोलते हैं ना, हमारे घर में काई जम जाती है. Right. सिंपल. हाँ. हाँ. सो हाँ. एक्चुअली मरीन लाइफ के अंदर जो उसका बॉटम होता है, वहां पे हम्म. वो मैक्सिमम लाइफ होती है, जो कि विच गिव्स ऑक्सीजन. Okay. एंड इमेजिन दैट ऑक्सीजन, बिकॉज सी,
अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो देन प्रोबेबली द मरीन जो वहां पे जो उसके बीच में जो रहते हैं, they will not be able to survive. So, करेक्ट, हाँ। so with the use of the pollution, it is depleting every day, and that हाँ। too in a square kilometers, not even a square meters. It is square kilometers. कि आप वाओ। एक दिन देखते हो कि उसके बाद ये खत्म हो जाता है, क्यों? क्योंकि हाँ। बिकॉज व्हेन यू एक्चुअली पुट प्लास्टिक इनटू इट, दे उनको सरवाइव करने के लिए भी ब्रीदिंग चाहिए, एंड राइट। जो मरीन जो लाइफ है, जो कि नॉर्मली जो इट इज लाइक अ म्यूचुअलिज्म, एक सिम्बायोसिस का रिलेशन है कि वो उनको फूड देते हैं, उनको ऑक्सीजन देते हैं, उसके बदले उनको कुछ ऐसे उनको विटामिन मिलते हैं, कुछ ऐसी चीजें मिलती हैं जिससे वो मरीन लाइफ और ज्यादा ग्रो करती है. So basically, the ecosystem is there in the place, and या। what we are doing is through the excessive urbanization, technology, and everything. की या। बात करते हैं कि हम केबल डालेंगे, सी के अंदर डालेंगे, ये करेंगे, कमर्शियल बनेंगे, एवरीथिंग इज देयर, सब कुछ ठीक है, बट यू हैव टू टेक केयर ऑफ द सिस्टम्स, बिकॉज अगर आपने आपने नेचर को, इकोसिस्टम को मेंटेन नहीं किया ना, तो आपकी आने वाली जनरेशंस ना वो नहीं बचेंगी. 2 दिन पहले मेरी डॉटर कहती है कि पापा, सिर्फ धरती के ऊपर, अर्थ के ऊपर सिर्फ 3% वाटर है जो फ्रेश वाटर है, जिसको पीने लायक बोलते हैं. 95%, 97% इज सलाइन वाटर. कहती यस। पापा अगर वो 3% खत्म हो जाएगा तो हम क्या करेंगे? मैं कहा बेटा मुझे नहीं पता. कहती हम सलाइन जो वाटर है उसको भी तो हम बना सकते हैं ना. मैंने कहा बेटा बिल्कुल तुमने सही बोला कि कर सकते हैं, एंड इजराइल हैज ऑलरेडी डन इट, या। but the technology which is going to make the desalinated, it is going to be very expensive. So imagine you will get a water, it is almost 5 times the cost of the petrol. हाँ, So हाँ। where we are going to go? करेक्ट, करेक्ट। So that is एब्सोल्युटली। the technology will have to be there. मैंने कहा क्या एक आदमी जिसका स्वच्छ पानी, स्वच्छ स्वच्छ वातावरण, जिसका अधिकार है, जन्म सिद्ध अधिकार है, क्या हम वो अधिकार जता पाएंगे? क्योंकि हमें ये नेचर ने दिया है. अब इमेजिन वी हैव टू बाय दोस थिंग्स फ्रॉम दी शॉपकीपर कि भाई तुम, आपने देखा ना कंटेनर आ रहे हैं, 1 लीटर ऑक्सीजन, 2 लीटर, एंड इमेजिन वेयर वी आर गोइंग. इवन कोविड टाइम पे हम नहीं खरीदे, हमने ऑक्सीजन का आई मीन कॉन्सेंट्रेटर खरीदा ही है ना। यस मतलब यस. पूरे सबने कोविड में, मतलब वो सबको मैडम भगवान याद आ कैन है, गया। ऑक्सीजन के छोटे छोटे से कैन है कि यार हाँ, दिल्ली में ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है, कोई नहीं थोड़ी सी ऑक्सीजन ले लेते थोड़ी हैं. सी ऑक्सीजन, या हाँ। जस्ट इमेजिन कि 1 लीटर आप ऑक्सीजन ले रहे हो, तुम्हें हम्म। नेचर ने कितना कुछ दिया है, एंड हाँ। यू आर नॉट, you don't even care what you are doing with the nature. Absolutely, absolutely. There's oxygen spas opened. Yes, I don't know if you've yes, heard about it. Yeah, so there's spas where you have to take oxygen shots and you have yes. oxygen bath. I Hmm. mean, what not? Because obviously people see that as more commercially, but the sad truth is it is saddening. It is It is sad. heartbreaking. Yes. Hmm. Yeah, yeah, yeah. So do you think, doctor, is the lung growth really? I mean, is this damage reversible in real sense? No, ma'am, this is not reversible. Okay. Let me be. अब मैं आपको एक और बताता हूँ. एक Hmm. एक there is a research. Yeah. Recently, I had a talk somewhere on the COPD day. It was on the 19th of November. So we Okay. have a COPD day जो कि normally smokers को एक बीमारी होती है. तो हाँ. हमारे जो lungs है ना, normally जब बच्चा पैदा होता है तो it grows, lungs जैसे हमारे सभी organs grow होते हैं, वो Correct. normally 22 years तक हमारे lungs grow होते हैं. Correct. उसके हाँ. बाद and there is a plateau. Once Hmm. they reach the maximum stage, it will remain like this till around 35, 36 years of age. Correct. Correct. Imagine now that plateau is going down at the age of 30 years. So Nice. 8 productive years have been lost because of this pollution, or I Hmm. would say the smoking, or I would say urbanization and everything. So Hmm. putting everything just together. So Yeah. आपने पढ़ा होगा दिल्ली के अंदर स्टडी आई कि जो लोग अर्बन पॉपुलेशन में दिल्ली में रहते हैं, मुंबई में रहते हैं, and the cities who are exposed to the high pollution levels, they हाँ. have a 4 years less as compared to the rural population. Yes. So True. imagine हमारा 4 साल हमारा लाइफ कम हो गया, एंड हाँ. जो लाइफ है वो हमारी प्रोडक्टिव लाइफ के कम हुए. तो Hmm. तो इसका मतलब तो ये है ना कि ये जो पोल्यूशन है इसके बारे में सेकंड नंबर पे जो हमारा कंट्रीब्यूट करता है, इफ आई टॉक अबाउट द ज्योग्राफी, Hmm. सो लेट्स टॉक अबाउट द ज्योग्राफी. इसके बारे में कोई बात नहीं करता. दिल्ली अगर नॉर्थ की तरफ देखे तो सराउंडेड बाय द हिमालयास. Hmm. अगर आप इधर की तरफ बेल्ट देखो तो अरावलीज हैं. आई वुड से कि नॉर्थ ईस्टर्न बेल्ट, इट इज Yeah. अरावलीज. सो Yeah. दिल्ली इज लाइक अ बेसिन.
हाँ अब बेसिन जब होता है तो उसमें क्या होता है कि दिल्ली की जो बेसिकली जैसे आप जब बर्तन के अंदर, आप किचन के अंदर जब आप बर्तन रखते हो तो बेसिन रखते हो। हाँ तो आपका क्या है कि दिल्ली के अंदर आप ऐसी जगह में जाओगे, जैसे सपोज मैं बोलूं कि पहाड़गंज है, और हाँ। या फिर अनंत पर्वत है, तभी उसका नाम हम्म अनंत पर्वत है। वहां पर जो हाइट है लगभग 3 4 5 मंजिल ऊपर है एज कंपेयर टू दी रेस्ट ऑफ पार्ट ऑफ द दिल्ली। करेक्ट। हाँ। इमेजिन दे हैव अराउंड 50 to 60 AQI का डिफरेंस है। सो इट इज हम्म। नॉट ओनली द गवर्नमेंट, इट इज द ज्योग्राफी विच इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल। बट ज्योग्राफी तो ऐसी ही रहेगी। राइट, So, उसमें तो कुछ so नहीं कर it is सकते। not only the duty of हम्म। the government which will have to contribute. We as an individual will also have to contribute towards the environment. या। अब उसके अंदर क्या होता है कि जो ठंडी हवा है वो नीचे हम्म रहती है। नॉर्मली जब जब आप हाइट में जाते हो तो आपकी जो हवा है वो ऊपर ठंडी होती जाती है। दिल्ली में क्या है कि नीचे हवा ठंडी है, ऊपर गर्म है, क्योंकि धूप हम्म ऊपर ही जा रही है, नीचे पहुंच ही नहीं रही वो। तो उसकी वजह से देयर इज इन्वर्जन। ये आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली की स्टडी थी विच हम्म। सेज देयर इज टेम्परेचर इन्वर्जन। या। तो या। उसकी वजह से क्या होता है, जितना PM 2.5 है, जितने पॉल्यूटेंट्स हैं, दे गेट ट्रैप्ड इनसाइड। एंड हाँ वंस दे गेट ट्रैप्ड इनसाइड, वो अंदर ही ऐसी फीलिंग आती है कि यू जस्ट गेट चोक्ड, और ऐसा हाँ। लगता है कि धुएं का एक अलग से ब्लैंकेट बन चुका है अंदर। करेक्ट, और वो कितनी तो बार लगता ज्योग्राफी, ही है हमें। यस, आप देखो आंखों में लगेगा। आंखों इसीलिए में। दिल्ली की सर्दी है। अगर हम्म। आप मनाली में जाओगे आपको सर्दी इतनी फील नहीं होगी। दिल्ली में 10 डिग्री में भी बहुत सर्दी लगती है, हाँ हाँ। 5 डिग्री में भी बहुत सर्दी लगती है। आप कहीं जाओगे -1 में भी जाओगे, वहां पे आपको इतनी सर्दी नहीं लगेगी, क्योंकि करेक्ट। हवा शुद्ध है। दिल्ली हाँ। की हवा ही शुद्ध नहीं है। हम्म। तो मतलब आई कॉन्स्टेंटली योर पेरेंट्स कि हाँ मतलब मेरे बच्चे को कभी एस्थमा नहीं हुआ, बट अब अचानक शुरू हो गया कि बहुत एलर्जी हो रही है, कॉफिंग हो रही है, वीजिंग हो रही है, फूड एलर्जी हो रहा है। तो व्हाट is driving the rise? Matlab, is it pollution, is it lifestyle, is it genetics, it's environment? Like you said, it is the, the basin, the kind of a, the geographical reasons, or something bigger. What is it? Ma'am, I think you have already pointed out. So it is the genetics. It is contributing to the some extent. I would Yeah. say the food habits. They are very Hmm. very bad. बिकॉज Okay. पीपल अभी आजकल क्या है कि हमारे जमाने में मुझे लगता है कि जब मैं छोटा था तो आई हाँ स्टिल रिमेम्बर कि मम्मी पापा बोलते थे कि जा बेटा थर्सडे मार्केट लगेगी, तुम सब्जी लेके आओ। वी हाँ। यूज टू गो देयर, वी यूज टू वॉक फॉर अराउंड 1.5 किलोमीटर गोइंग एंड कमिंग बैक अराउंड 3 किलोमीटर। या। इमेजिन कि सारी सब्जियां लेके आते थे हम। वो आजकल तो क्या है, जोमेटो, आजकल हाँ स्विगी, आजकल ब्लिंकिट, आजकल हाँ। जेप्टो। तो हम्म। प्रैक्टिकली देयर इज नो वर्कआउट। लोग या। मर्सिडीज के ऊपर जाते हैं जिम के अंदर साइकिलिंग करने के लिए। हाँ मर्सिडीज बेंज के अंदर दे फाइट, मतलब कि इतना वहां पे व्हीकुलर जाम लग गया। अरे यार मैं जिम जा रहा था, वहां पे आधे घंटे का जाम लग गया। अरे भाई हाँ तुम पैदल क्यों नहीं चले जाते? हाँ। तो इमेजिन। सेकंड नंबर पे जंक फूड बहुत ज्यादा हो गया, प्रोसेस्ड फूड बहुत ज्यादा हो गया। हम्म अनदर थिंग विच इज कंट्रीब्यूटिंग साइलेंटली इज अ लैक ऑफ स्लीप इन ऑल हम्म। द एडोलेसेंट पॉपुलेशन, इवन द यंगस्टर्स। या। कोई भी बच्चा 15 16 साल का रात को 1 1:30 2 बजे से पहले सोता ही नहीं है, हाँ हाँ। सोता ही नहीं है। एंड सारी स्टडीज कहती हैं कि अगर आप टाइमली नहीं सोओगे, तो आप अर्ली टू बेड अर्ली टू राइड राइज मेक्स मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। यस। तो इमेजिन, वेल्दी तो मुझे नहीं पता बट हेल्दी जरूर बनाता है और वाइज हम्म भी जरूर बनाता है। तो उसके बाद टेक्नोलॉजी, प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड, अगेन दी हेरिडिटी, हम्म। एनवायरमेंट। सो एवरीथिंग इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग। एंड दूसरा, या। जो हमारे जो एज अ पेरेंट्स, हमारी थ्रेशोल्ड बहुत कम हो गया। जरा सा हम्म। बच्चे को कुछ हुआ, हमने क्या किया, नेबुलाइजर दे दिया। हाँ। We start giving the antibiotics, we start giving the हम्म anti-allergies without even letting them कि हो सकता है ये बॉडी का कुछ रिएक्शन हो। बॉडी इज ऑल्सो ऑन दी समहाउ। एक होता है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, जितनी एलर्जिक रिएक्शंस हैं, अगर हम्म। वायरल होता है, बच्चे को नजला जुकाम होता है जिसको फ्लू बोलते हैं, दे आर हम्म। ऑल सेल्फ लिमिटिंग, ऑल सेल्फ लिमिटिंग, वो अपने आप ठीक होता है। बट हम्म। ओनली थिंग विच इज रिक्वायर्ड इज जस्ट टू हैव अ पेशेंस। या। आजकल के पेरेंट्स के अंदर सिंगल चाइल्ड है, मैक्सिमम 2 बच्चे हैं, दे आर ऑल पैम्पर्ड। बच्चे बहुत हम्म। क्रैंकी हो जाते हैं, स्कूल स्कूल मिस हो रहा है। अच्छा, उसके बाद कोविड के बाद में जब भी बच्चे स्कूल जाते हैं, हाँ मैडम हाँ। खांसी की, मैडम ने बोला चलो घर वापस।
उनको यही नहीं पता, उनको लगता है कि अगर कोविड हुआ, अगर ये खांसी हो गई तो इसका मतलब किसी और बच्चा कोई कैच करेगा, बिकॉज अदर पेरेंट्स हैव स्टार्टेड कंप्लेनिंग अबाउट दैट of the child. विदाउट इवन रियलाइजिंग कि यार आपके बच्चे को भी तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। इससे पहले लोग स्कूल नहीं जाते थे क्या? हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट। उसके बाद बच्चा जब खांसी करता है तो फर्स्ट एड रूम में जाता है, डॉक्टर देखता है, चलो भाई बच्चे को, अपने पेरेंट्स को फोन करते हैं, अपने बच्चे को घर ले जाओ। हाँ तो आई डोंट नो कि व्हाट इज हैपनिंग, मतलब आजकल बच्चों का, पेरेंट्स का इतना थ्रेशोल्ड कम हो गया है, विदाउट इवन हमारी जो बचपन की जो सजाएं होती थी, मम्मी बोलती थी बेटा तू पढ़ाई नहीं करता, तू कद्दू खाएगा, टिंडे खाएगा, तोरी खाएगा, ये खाएगा, वो खाएगा। आजकल के बच्चों को आप पालक खिला के दिखा दो, अच्छा आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर आपको कहेगा कि पालक खाओ, डॉक्टर हाँ कहेगा वेजिटेबल्स खाओगे तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। सो हाँ। इमेजिन, अच्छा जब मैं छोटा होता था, जब पनिशमेंट मिलती थी मुर्गा बन जाओ, मुर्गा बनो, आपको पोज करो। आज की डेट में योगा के अंदर लोग मुर्गा बनने के लिए जाते हैं, डक पोज, कि आपको डक पोज करना है, आपको ये करना है, यू हैव टू बिहेव लाइक अ फ्रॉग की पोज। दीज आर ऑल जस्ट इमेजिन, हमारी हाँ बचपन में सजाएं होती थी, आज ये हमारी जरूरतें हो गई हैं। हाँ, करेक्ट, हाँ करेक्ट, एब्सोल्युटली, दैट्स वेरी वेरी ट्रू। सो आप मेरे को ये बताइए, जैसे हम लोग अब इसकी बात करते हैं कि हम हमेशा जो ये आजकल लेबल करते हैं सिम्टम्स की, सीजनल है, वायरल है, जस्ट कॉफ है, बट समटाइम दे आर लाइक अर्ली साइंस ऑफ अ चाइल्ड हु नीड्स probably more attention. So what are those early warning signs that parents should never ignore? That's one. And what indicates that a child needs medical evaluation? जैसे हमने बात की कि थोड़ी सी सर्दी खांसी होती है तो भी पहुंच जाता है पेरेंट्स, लेकिन हाउ डू वी डिमार्केट? मतलब ऑब्वियसली ये हमारे अंदर का डर ही है एट द एंड ऑफ द डे, लेकिन एक वार्निंग साइन होती है, एक होता है कि चलो नॉर्मल, जो हम अभी बात कर रहे हैं कि हाँ बच्चे को थोड़ी सी खांसी हुई, स्कूल से फोन आ गया, भाई बच्चे को ले जाओ। लेकिन कुछ वार्निंग साइंस होते हैं, कुछ इंडिकेटर्स होते हैं कि हाँ भाई अब मेडिकल इवैल्यूएशन की जरूरत है, या अब हमें डॉक्टर हरीश जी के पास जाना है, बिकॉज वी रियलाइज देयर इज अ प्रॉब्लम। सो हाउ डू वी रियलाइज दोज रेड फ्लैग्स? हाउ डू वी एज नोविस पेरेंट्स, कि हमें पता ही कैसे चलेगा कि हमें हमारे बच्चे को एक्चुअली चाहिए मेडिकल अटेंशन, इट इज नॉट अ नॉर्मल कोल्ड एंड कफ, एंड व्हाट आर दोज सिग्नल्स, व्हाट आर दोज साइंस? मैम सबसे पहले तो थैंक यू फॉर आई मीन पुटिंग अप दिस क्वेश्चन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यूजुअली में से पेरेंट्स पूछते हैं, सबसे पहले तो हमें क्या करना है, जो ट्रिगर्स है ना, वी नीड टू आइडेंटिफाई द ट्रिगर्स। लेट्स से यू Okay. हैव आइडेंटिफाइड द, इफ एनी किड who comes across any, I mean the pet or any I would say anything, and उसके बाद वो ट्रिगर करता है, तो you have identified it. First of हाँ all, this identification is very very important. And now there are two factors: one you can modify, another you cannot modify. If something is in air, you can't modify that now, because ultimately you need to breathe that air first. राइट राइट। Second number पे, if it is recurrent and that leads to the absenteeism in the school, that leads to the, suppose बच्चा है, उसका social profile अपने लिए लो हो रहा है कि I am not able to play, because child wants to play, but still that child is not able to play because of the problem. So that is the first warning sign. And kid is not able to sleep properly. So हाँ activity limitation, there is a sleep limitation, there is a absenteeism from the school, and हाँ the symptoms have been recurring. मतलब still the there is, एक होता है पीरियड ऑफ नॉर्मेलसी, एक होता हाँ है कि बच्चे को कभी कभार सीजन में आया, कभी 6 महीने में एक बार आया, 1-2 दिन के लिए, उसके बाद वो बच्चा ठीक हो गया, नो हाँ नीड टू डू एनीथिंग फॉर दैट। बट इफ इट कीप्स ऑन हैपनिंग अगेन एंड अगेन विदाउट इवन एंड यू आर नॉट मेकिंग इट, आप ना उसको ट्रीट करवा रहे हो, ना डॉक्टर से इवेलुएट करा रहे हो, आई थिंक आई वुड नॉट से कि दैट इज द टाइम वेयर वी शुड ट्रीट द पेशेंट। I will not label them as a patient, but it needs to be checked. It needs to be, I mean, डॉक्टर के पास जाना चाहिए, विजिट करवानी चाहिए, to confirm if it is seasonal allergies or some हाँ chronic thing which is happening inside the body that probably may lead to something, the asthma बन गया, बाद में कोई chronic rhinosinusitis बन गया, या कुछ और बन गया। दूसरा, राइट। कुछ पेरेंट्स होते हैं जो बच्चे को, अब आपने देखा होगा कि आजकल जो बच्चे हैं वो यूजुअली एक्सरसाइज नहीं है, तो कुछ फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं, जैसे लैक ऑफ एक्सरसाइज। अब बच्चा इतना मोटा हो चुका है, उसके गर्दन के ऊपर काले काले निशान हो सके, जिसको वो मैली गर्दन बोलते हैं,
इसको दिस इज द फर्स्ट साइन ऑफ इंसुलिन रेसिस्टेंस. एंड आई हैव द पेशेंट्स विद मी. एक बच्चा 3 साल का जो खराटे मार रहा है, why would a 3-year-old kid snore? तो ऑब्वियसली यू विल हैव टू इवेलुएट कि उसको टॉन्सिल्स तो नहीं है, उसके नाक के अंदर कोई हड्डी तो नहीं बड़ी हुई, एडिनोइड्स तो नहीं है, या कुछ ऐसा तो नहीं कि बच्चे को आप बहुत ज्यादा रात में खाना देते हो, जंक फूड दे रहे हो. तो अल्टीमेटली दीज आर दी साइंस. सो आई वुड जस्ट पुट इट इन सिंपल वर्ड्स. इफ द चाइल्ड इज नॉट एबल टू प्ले प्रॉपरली, नॉट एबल टू स्लीप प्रॉपरली, अगर बच्चा ये कहता है कि मैं अपने फ्रेंड्स के जितने मेरे जो पियर्स हैं उनसे ज्यादा मेरे को थकान होती है, उनसे ज्यादा मैं बीमार रहता हूँ, आई थिंक दैट इज ऑल्सो द रेड फ्लैग साइन. एंड एंड द प्रॉब्लम हैव बीन रेकरेंट. आप देख रहे हो कि बच्चे को बार बार एंटीबायोटिक्स, नेबुलाइजर्स की जरूरत पड़ती है, एंटी एलर्जिक्स की जरूरत पड़ती है. तो आई थिंक दैट इज द बेस्ट टाइम टू गो फॉर द इवैल्यूएशन टू द डॉक्टर. यस. Perfect. That's easier said than done. कि मतलब these are very easy, but at the same time, obviously parents have to be more proactive. ये नहीं सीधा jump कर जाए और सीधा भाग जाए. मतलब obviously we have to keep that balance. मेरे पास जब भी एज अ साइकोलॉजिस्ट, एज अ आई वुड से, जब भी आपके पास बच्चे आते हैं आपको यही सवाल पूछने हैं, क्या आपका बच्चा अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने जाता है? पहले जाता था, अब नहीं जाता, क्योंकि वो बोलता है कि मैं भाग नहीं पाता उनके जितना. सेकंड नंबर पे रात को ठीक से सो नहीं पाता, स्कूल से रिपीटेड एब्सेंटिज्म हो रही है, सेकंड सिम्टम्स हैव बीन रिकरेंट. आई थिंक एवरीथिंग फिट्स इनटू दीस थिंग्स. तो ये 4 सवाल पूछोगे तो आई थिंक आप मतलब you can You will get the answer that they should visit a doctor. करेक्ट makes sense. So डॉक्टर, अभी जैसे चलिए अभी हमने बात की बच्चों की. अब मेरे को ये बताओ, जैसे आप, अब हम एयर प्यूरिफायर की बात करते हैं, फूड की बात करते हैं, सप्लीमेंट्स की बात करते हैं. सो शुड आई रियली बाय एन एयर प्यूरिफायर? व्हाट शुड आई फीड माय चाइल्ड टू प्रोटेक्ट द लंग्स? मतलब this is a very confusing answers. Are vitamins like vitamin D or zinc or probiotics really helpful, or it just hype? So there are so many mix of messages. Honestly, when I had put the story on our live session, so these were the questions. मैम बताओ कौन सा प्यूरिफायर यूज करें? प्यूरिफाई करेंगे तो फिर बाहर जाके मेरे बच्चे का और तबीयत तो नहीं खराब हो जाएगा? So there are mixed messages online. All obviously we informed parents are also equally confused. So for parents raising children in this polluted environment, obviously we cannot run away from the city. We are staying in the city, and we have to live by it. Yes. And what are those real, practical, science-backed tools that can genuinely help? If we talk about specifically, if we talk about air purifiers, like if these features matter, like HEPA or CADR or filters. फूड में भी जैसे हम बात करें, ओमेगा 3 है, विटामिन सी, तुलसी दे दो, जैगरी दे दो, टर्मरिक दे दो, मतलब ऑब्वियसली. तो डज इट रिड्यूस लंग इन्फ्लेमेशन? या फिर हम सप्लीमेंट्स की बात करें तो क्या बच्चों को विटामिन डी, जिंक, प्रोबायोटिक्स देनी चाहिए, इनहेलर देना चाहिए कि नहीं? सो मतलब आप मेरे को एक टूल किट टाइप का बताओ कि व्हाट आई शुड इंक्लूड एंड व्हाट आई शुड नॉट इंक्लूड. और एज अ डॉक्टर, मतलब हम बोलते हैं ना, स्टैम्प्ड बाय अ डॉक्टर एंड प्रिस्क्राइब्ड बाय अ डॉक्टर. सो एज पर यू, व्हाट इज द राइट थिंग? मतलब because I myself am confused. Matlab, I'm not lying. It is in my own household also. I am equally confused. मैम सबसे पहले तो आपको यू हैव टू सी दी प्रैक्टिसेस. और मैं हर बार बोलता हूँ पेरेंट्स को, बच्चे कभी भी पेरेंट्स की बात नहीं मानते, बच्चे पेरेंट्स को फॉलो करते हैं. सो इफ यू ईट ग्रीन वेजिटेबल्स, इफ यू ईट फ्रेश फ्रूट्स एवरी डे, नो जूसेस, आई वुड से कि जो आप करते हो ना, बच्चे आपको फॉलो करते हैं. दे डोंट लिसन टू यू, दे फॉलो यू. सो सबसे पहले अगर आपको लग रहा है कि आप स्मोकिंग करते हो या आप जंक फूड बहुत ज्यादा घर में खाते हो, तो सबसे पहले आपको खुद खाना है, बच्चे ऑटोमेटिकली उसको खाएंगे. सेकेंड नंबर पे हाइड्रेशन शुड बी मेंटेन. सो देयर शुड बी नो प्रोसेस्ड फूड, और आई वुड से लिमिटेड प्रोसेस्ड फूड फर्स्ट. सेकेंड नंबर पे प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स, क्योंकि हमारा जो नेचर है, भगवान ने हमें वो सब चीजें दी हैं कि आंवला आता है इस समय जैसे आम है. आम भाई गर्मियों में क्यों आम आता है? अभी क्यों इस समय क्यों संतरा आता है? क्योंकि संतरा के अंदर विटामिन सी होता है. इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट वी हैव टुडे. सो वी डोंट नीड एनी मेडिकेशन. उसके बाद आपको प्लांट्स लगाने हैं, जैसे आपको स्नेक प्लांट है, अरिका पाम है, रबर प्लांट है, उसके बाद पोथोस है जिसको मनी प्लांट भी बोलते हैं. दीज आर वेरी सिंपल प्लांट. और प्लांट्स आपके एयर को प्यूरिफाई नहीं करते. वो क्या करते हैं? पॉल्यूटेंट्स को देखो, PM 2.5 को कुछ नहीं करेंगे.
मैंने आपको बताया ना शुरू में 0.03% जो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में दूसरी गैसेस हैं वो रिलेटिवली उसको प्योर करेंगे, वो जो इम्प्योर्ड जो है उसको बेटर करने की कोशिश करेंगे। अनदर थिंग इज कि एयर प्यूरिफायर इज मैंडेटरी एंड स्पेशली फॉर द किड्स जिनकी डेवलपिंग लंग्स हैं एंड द एल्डरली पॉपुलेशन और आई वुड से द चेस्ट पेशेंट्स। रीजन बीइंग कि जो आपका और आपको दे शुड अवॉइड द I mean the outdoor activity, especially in the morning, early morning, और would say, or I would say the late evening. तो Yeah. अब बच्चे अगर उनको नॉर्मली मेरे से अभी मेरा एक स्कूल के अंदर भी मेरा एक सेशन था, तो मैंने बोला कि आप जो आपका मॉर्निंग का जो सेशन होता है, एक तो विंटर्स है, नाउ यू हैव अ रीजन। Yeah. तो बजाय कि आप सुबह 8 बजे स्कूल लगाते हो तो आप 11 बजे जो बच्चे हैं ना, आप 2 घंटे पढ़ा के उसके बाद 10-11 बजे उनका स्पोर्ट्स का टाइम रखो, और ताकि प्री लंच, उसके बाद लंच के बाद बच्चों को थोड़ी देर पढ़ा के फिर उनका स्पोर्ट्स का आपको जो भी आपका अगर क्या नाम है लेक्चर होता है या जो भी उनकी क्लास होती है, तो Right. एक्चुअली में इट हेल्प्स। दूसरा जो आपने फिल्टर बताया कि जैसे हैपा फिल्टर एटलीस्ट 13, मैंने अपने बहुत सारे वीडियोस में बताया, एंड CADR ग्रेटर देन 250, इट इज नॉट अप टू 250। अप टू 250 का मतलब है कि वो 50 है, 100 है, 150 है, 200 है, 250 है, इट कैन बी एनी नंबर। But once you cross this number up to around 400, 500 और 600, usually वो काम करते हैं, and every room should have an air purifier। क्योंकि Right. एक्चुअली में क्या है कि अभी 300, 400, 500, इवन 600 के उसमें Correct. everybody is getting affected, everyone। Yeah. So Yeah. in nutshell, good food, less of the processed food, हाइड्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो हम पानी पीते हैं सर्दियों के अंदर यूजुअली हमारा पानी का कंजम्पशन कम हो जाता है, एंड नॉर्मली हमें 2.5 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए एवरी एज ग्रुप। पानी Yeah. हमारी बॉडी के सारे टॉक्सिन्स को निकाल देता है। अनदर थिंग Absolutely. इज प्लांट्स। फोर्थ नंबर पे एयर प्यूरिफायर विच इज मैंडेटरी, एंड यू नीड टू कीप द डोर्स क्लोज्ड एंड विंडोज क्लोज्ड एवरी टाइम। इसीलिए आपको जब भी, और आई वुड से कि अवॉइड द स्ट्रेनस एक्सरसाइजेस। अगर आपको करना है तो यू कैन वॉक इंस्टेड ऑफ जॉगिंग और रनिंग, यू मे वॉक इंस्टेड ऑफ इंडल्जिंग इन एनी स्पोर्ट। आप हल्का फुल्का कोई ना कोई योगा में स्ट्रेचिंग कर लीजिए, बट डू नॉट डू अनुलोम विलोम कपाल भाती ड्यूरिंग दी हाई पोल्यूशन टाइम, बिकॉज आई टोल्ड यू, आप जब 23,000 बार सांस लेते हैं, अगर सपोज मैं 1 घंटे में ब्रेक डाउन करूं, अगर आपने एक मिनट के अंदर 12 से 14 बार सांस लिया, जब आप डीप ब्रीदिंग करते हैं तो 5 मिनट के अंदर आप 100 से 150 बार सांस लेते हैं, तो यू विल इनहेल द बैड एयर, हैजार्डस एयर, अप्रोक्सीमेटली जो आपने 1 घंटे की थी वो आपने 5 मिनट के अंदर ब्रीथ कर लिया, विच मे हैव द सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज इन लाइफ। एंड मुझे ना बड़ा फील होता है, अभी क्या है कि अभी मेरे क्लिनिक में बहुत रश है, तो आई कैन सी जो स्मोक करते हैं वो तो प्रॉब्लम में है ही है। People have been coming, those who are non-smokers, बच्चे, elderly patients, it is really difficult time for them. So Yeah. stay hydrated, keep mask, N95, N99 मास्क है, और ये 3 ply जो कपड़े का जो मास्क है जो कोविड टाइम में चला था, आपने देखा, इट इज जस्ट अ फैशन स्टेटमेंट, वो एक वार्डरोब स्टेटमेंट है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। Yeah. Got it. Perfect. So you tell me, like, although obviously your toolkit was superbly amazing because it just gives us pointers like 1, 2, 3, 4, 5 हमें क्या करना चाहिए. But this is more to do with hope. Okay, now even though data is scary, even though we know that things are going in the wrong direction, but I strongly believe that awareness and early action can really change outcome. जैसे आपने बोला पेड़ पौधे के बारे में, you spoke about N95 or N99, you spoke about the filters, you spoke about the air purifiers, you spoke about the food. But parents today are really conscious, more proactive, more informed. उनको पता होता है तो वो एक्शन लेना चाहते हैं, पहले पहले की तरह चीज, मतलब there are pros cons for everything. So have you seen children improve dramatically once lifestyle or environment changes are made? Can the lung health bounce back? Yes, only if I would say you need to identify the triggers. If there are no triggers, actually, see, this is a damage. So because जिन लोगों के, अब इसमें 2 कैटेगरी ऑफ पेशेंट्स है, जिनका एक्यूट इंसल्ट है एंड दोज हु हैव अ क्रॉनिक इंसल्ट। आई विल, इंसल्ट इज नॉट एज सच कि हम उनकी वो बुराई कर रहे हैं, इंसल्ट इज
insult, it is inflammation in the lungs. Yeah. Those who have got the acute inflammation and those who have the chronic inflammation, suppose they are smoking, then probably their lungs won't, matlab, they Sounds. won't improve at all. बट Hmm. जैसे लेट्स से कि आई एम, अभी मैं स्मोक नहीं करता, मैं कुछ Hmm. नहीं करता, अब मेरी एज है, उसके एज के हिसाब से मेरा इतना लंग काम करना चाहिए, बट आई हैव चेक्ड Hmm. इट, एंड यू कैन एक्चुअली, देयर आर टूल्स इन द मार्केट जिसमें Hmm. आप अपनी लंग की, आपकी जो खुद की एज है और आपकी लंग्स की कितनी एज है, यू कैन आइडेंटिफाई, एंड दीज आर वेरी वेरी चीप टेस्ट, 300 400 500 रुपीज में, दैट्स इट, Okay. दैट्स इट. Okay. तो यू कैन ऑलवेज, एंड किड्स कैन ऑल्सो चेक, द अडल्ट कैन ऑल्सो चेक. एंड अब उसके अंदर दो एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा, पीपल हैव बीन टेकिंग काढ़ा, लॉट ऑफ अदर थिंग्स की, अपने गले को भी चला रहे हैं, पता नहीं क्या क्या ले रहे हैं. वो Hmm. देखो, उसका कोई हमारे पास एविडेंस नहीं है. Hmm. इफ एट ऑल यू वांट टू टेक इट, यू कैन टेक इट, बट आई वुड से, अगर आप बेसिक अपनी चीजें फॉलो करते हो, अच्छा Hmm. पानी, अच्छी आप अच्छा फूड खाते हो, तो आपकी Hmm. बॉडी सिंक करती है नेचर के साथ में. जब आप Hmm. नेचर के साथ सिंक करते हो तो ऑटोमेटिकली हीलिंग स्टार्ट होती है. एंड Yeah. हीलिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अपनी स्टमक को रेस्ट देना. आप देखो, जब आप बीमार होते हो, आप कहते हो यार मुझे भूख नहीं है, आज मैं खाना नहीं खाऊंगा, तो उस समय आपकी बॉडी हीलिंग मोड पे होती है. वो कहती है कि सिर्फ और सिर्फ मुझे हील करना है, मुझे खाना नहीं चाहिए. तो मुझे Hmm. लगता है कि उसके अंदर इंटरमिटेंट फास्टिंग, नॉट फॉर द डायबिटीज और द किडनी पेशेंट्स और द एल्डरली और द किड्स, बट Hmm. इट रियली हेल्प्स. अगर आप Hmm. 4 से 5 घंटे, जैसे आपने अर्ली अगर डिनर कंज्यूम कर लिया, इफ यू आर हाँ. टेकिंग एट अ बेड टाइम, अब बेड टाइम आपकी बैटरी चार्ज हो रही है, क्योंकि सुबह के लिए आप नेक्स्ट डे के लिए प्रिपेयर हो रहे हो. इमेजिन पीपल हैव बीन ईटिंग थ्रू स्विगी एंड दी जोमेटो. वो रात को 12 बजे मैगी बना रहे हैं, रात को अपनी छत से फर्स्ट फ्लोर से पोटली लटकाते हैं कि भाई फूड डिलीवरी वाला बंदा आता है, पेरेंट्स सो रहे होते हैं, एंड दे हाँ. पुट इट इन एक उसके अंदर, थैले के अंदर डाल के, भाई हमारा रात को हमने ये मंगाया. रात को 12 1 बजे पेशेंट्स आते हैं, रात को 12 1 बजे मोमोज खा रहे हैं जी. अब हाँ. momos, you are taking just maida inside. So how can you expect the lungs to get healed with medicines? So it is हाँ. not only the medicines, it is everything else. Yeah. Medicine just play a small part. That's it. Yeah. 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 Very true. That is so true. मतलब अब Hmm. मैजिशियन थोड़ी है, मतलब हम लाइफस्टाइल चेंज नहीं करेंगे, चाहेंगे कि मैजिक कर दे मेडिसिन, दैट इज नॉट अब पॉसिबल. मैडम पेशेंट आते हैं, डॉक्टर साहब मैं तो 20 सिगरेट रोज की पीता हूँ. मैंने बोला आपके लंग्स में डैमेज हो रहा है. डॉक्टर साहब मैं 20 की 10 कर दूंगा, जब 10 वाला जो है ना पार्ट, इसके बदले लंग्स ठीक कर दो. मतलब हाँ. इमेजिन द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दे आस्क, एंड एवरी टाइम, भाई अगर मैंने उसको बोला, मैंने कहा देखिए सर, आपके लंग्स डैमेज हो रहे हैं, दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब. हाँ. मैंने हाँ. कहा अगर आपको लगता है, अब नाउ दी मार्केटिंग क्या है, मार्केटिंग क्या है, उन्होंने कहता मैं तो पतली वाली सिगरेट पीता हूँ, मैं ये हाँ. फिल्टर पीता हूँ, मैं वैसा पीता हूँ. मैंने कहा सर आप ना कुछ भी मेरे को मार्केटिंग गिमिक दो, आप हाँ. मुझे कुछ भी दो, इट विल नॉट वर्क. हाँ. अल्टीमेटली इट इज गोइंग टू डैमेज योर लंग्स, एंड दैट इज द करेक्ट. रियलिटी. Even if you smoke 1 cigarette, it will damage. Even if you smoke 20, अगर आप 20 करोगे तो it will be just 20 times. That's it. हाँ. करेक्ट. करेक्ट. डैमेज तो होगा ही, मतलब हाँ. करेक्ट. So, in the conversation in between, you were naming some tests कि 300-400 रुपए का टेस्ट होता है जिससे हमें पता चल सकता है. What are those tests which you're talking मैम about? सबसे पहले एब्सोल्यूट इस्नोफिल काउंट, Okay. AEC, A for apple, E for elephant, C for cat. Okay. AEC, that is 100 rupees. हाँ. Another test is total IgE, worth rupees around 400 500. It tells about if you are allergic to anything or not. And the Okay. next test, you can do it at your home, is PEFR. That is peak expiratory flow rate. उसके Okay. अंदर वहां पे उन्होंने क्यूआर कोड दिया, यू स्कैन दैट क्यूआर कोड, यू कैन आइडेंटिफाई कि हाउ योर लंग्स आर वर्किंग. एंड Okay. ये सारा बैटरी ऑफ टेस्ट, ऑल 3 टेस्ट एंड अदर टेस्ट विच वी कैन गो, अगर हमें लगता है दैट इज द चेस्ट एक्सरे, सारे Hmm. टेस्ट आप 1000 रुपए में करवा सकते हो. Okay. एनीबडी वुड अफोर्ड इट, एंड एनीबडी कैन गेट इट चेक्ड कि मेरे लंग्स पोल्यूशन से अफेक्ट हुए हैं या नहीं. Hmm. Wow. Wow. Lovely. Lovely. Amazing. So now, I think now we have a lot of idea on what we are supposed to do and what we are doing wrong. So I think that's an awesome way of understanding things. Obviously, nothing is super simple or nothing is like हमने चुटकी बजाया और हो गया. Like everything will take time, and then we have to give that time to each other in terms of
proper eating, in terms of lifestyle, in terms of taking care of ourselves, in terms of hydrating, in terms of sleeping. So all the things together. So thank you so much. It really helped. But I have a small rapid fire round for you. Small 7 questions, quick wala answers. So something we want to even more deeply understand on the same situation. So tell me when you're ready. Yes, I'm ready. Okay. So Yes. one thing you wish every parent would stop doing. Parents would, they should, I would say they would Hmm. stop doing. They should not, they should not smoke, and Okay. they should have a very less processed food, and that too the junk food, because we are really literally we are in a on a stage of, the generation is going to get ruined up. Because see, Right. I had a patient, uh 30 years getting the stent done. So Huh. imagine, he started smoking because his father was smoking at the age of around 15, and father ना बिल्कुल फ्लॉन्ट करता था कि मैंने 15 साल की उम्र में किया और आज मेरी 60 साल की उम्र है, मेरा हार्ट भी ठीक है, मेरा सब कुछ ठीक है. The son has started the same thing, and son landed up with a heart attack at the age of 30 years. My God. That's so sad. So सबसे पहले उनको खुद बंद करना है, उनको बच्चों को नहीं बोलना, खुद हाँ. स्टॉप करना है. नहीं मतलब हम पेरेंटिंग में भी यही बोलते हैं दैट जस्ट डोंट से मतलब children listen to what they see, not what you Yes, say. yes, So you have yes, to be a good role model. मतलब not that you have to pretend, but आपके लिए भी तो अच्छा ही है ना. मतलब अगर आप कुछ अच्छा सिखा रहे हो, अच्छा करोगे तो बच्चा भी तो देख ही रहा है मतलब. I think yes. that is very important. So yeah. So one thing you wish every school would start doing immediately. Uh, Immediately. I would say immediately. That's it's a very tricky question. I हाँ. mean, the children. Uh, because see, everybody talks about the syllabus. कि हमने physics में इतने नंबर आए, इतने आए, इतने drawing में ये आए. First of हाँ. all, I really want, because the first of all, the finances. हाँ. Financial education is a must. हाँ. Every child should know. And Yeah. financial, if you because I am NSC BSc certified mutual fund instructor, apart from being a doctor, and I also teach the people about the options trading and all those things. So I've already done the MBA. So I really feel, once you learn the finances, because it is not just the finances कि मैंने इतने पैसे कमाए, इतने किए, but once you learn it, you can, जैसे मेरी डॉटर ने बोला कि पापा 3% है, अगर वो चला जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे. हाँ. So it हाँ. is just because once you know the numbers, financial numbers, I would say data, then the curiosity is being raised inside. जब curiosity बढ़ती है तो you talk about everything. जैसे मैंने आपको शुरू में बोला, हम हम्म. 22,000 23,400 बार सांस लेते हैं एक दिन हाँ. के अंदर. तो it is just about the finances and everything. Right, Yeah. right. Numbers. So most underrated tip for strong lungs. Underrated tip for Hmm. strong lungs: having kada, having हाँ. turmeric milk, having and you smoke a lot of cigarettes and end up, उसे पता है क्या कहते हैं, उसे कहते हैं, हम कहते हैं चेपी लगा दी. अब हाँ. आपने क्या किया, एक टंकी है, उसके अंदर आपने पहले ना छेद कर दिए. हाँ. मतलब पूरे दिन, जैसे मैं आपको आई टेल यू द रियल एग्जांपल, इट इज वेरी फनी. पूरे दिन सुबह उठा, मैंने छोले भटूरे खाए, दोपहर को मैंने बटर चिकन और नान वगैरह खाया, रात को हम्म. मैं गया, मैंने मोमोज खाए, और रात को मैं बोलूंगा मैंने आज बहुत खा लिया, मुझे ग्रीन टी दे दो. हाँ. How does that green tea is going to work? हाँ. हाँ. So that is the, I would say कि आपने बहुत उसको ओवररेट किया हुआ है कि सब कुछ मैं पूरे दिन खराब करूंगा और रात हाँ. में मैं काढ़ा पीऊंगा तो मेरा सब कुछ सही हो जाएगा. Got it. Got it. Perfect. So tell me, asthma inhalers are lifesavers or overfeared? I would say, see, I have a different opinion. They are, I would say, overfeared, especially in the kids. Because see, I have a lot of patients. बहुत सारे बच्चे मेरे पास आते हैं जिनके अंदर डरते हैं. Of course, I give them for a very brief period, क्योंकि यूजुअली बच्चों के अंदर, अगर आपने एस्थमा है
तो अगर आप इनहेलर या नेजल स्प्रे देते हो तो वो परमानेंटली क्योर होता है. तो दैट इज ओवर पीरियड. एंड आई वुड से नॉट लाइफ सेवर, but I would say to save them from the disease that is going to happen in the later part of the life. Got it. Because once it is, because asthma के अंदर एक बड़ी ब्यूटी है, आप Mm, इसको कंट्रोल कर सकते हो, इसको ठीक नहीं कर सकते. But mm, once it is controlled, every time you as per the doctor's advice, you take the inhalers and you follow all the instructions, it will definitely go. I have lots and lots of hundreds of बच्चे जो बहुत बुरी हालत में nebulizers पे आते थे, and once they are with me and everything is gone. They are off wow. inhalers, they are not taking anything, and they just imagine they comes just once in an year, and that too for flu vaccination. That's it. Hmm. So, one change that would improve public health instantly. Public health instantly. I think we should talk about the sustainability and the Hmm. collective efforts in everything. It is Hmm. not only the government's responsibility कि सिर्फ रेखा गुप्ता मैम आएंगी और वही पूरा का पूरा यमुना को साफ करेंगी. I think it Correct. is a collective responsibility, and we should think about the sustainability. So Hmm. Hmm. putting up the air sprink, हम वाटर स्प्रिंकलर्स जो यूज कर रहे हैं, आपको पता है जो वाटर स्प्रिंकलर्स है ना, एक Hmm. आईआईटी दिल्ली की स्टडी है, उसमें सिर्फ 0.3% फर्क पड़ता है. Hmm. And it will cause more pollution because the vehicles जब जब वाटर स्प्रिंकलिंग के लिए यूज करते हैं, दे आर ऑल डीजल व्हीकल्स. Hmm. It is the pani that it is being used. Wasted. So so I think government will also have to think about a long term Other sustainable alternative solution. ways. Hmm. Hmm. Correct. Absolutely. Your message for young parents raising kids in today's era. In today's era, so first of all, encourage the kids to adopt a healthy lifestyle, and I Hmm. would say give 100% importance to the sleep, and there is a 1 day digital detox to be followed. They Wow. should spend time with the I mean parents के साथ time spend करें. कोई हाँ, उनके घर में कोई कोई डॉग है या कुछ कैट है या कुछ भी है, दे जस्ट गो हैंग आउट कि जू में जाएंगे, आज हम मूवी देखेंगे, आज हम म्यूजिक सुनेंगे, आज हम जैम सेशन करेंगे. बिकॉज वंस दे कनेक्ट with the real friends and the जो हाँ, फैमिली के मेंबर्स है ना, then right. you know differences सॉर्ट होंगे. आप अपने बारे में बताओगे, क्योंकि आई थिंक जो भी डिजिटल है, हर किसी के पास एक पर्सनल टीवी है, एंड Correct. इट इज सीरियसली lacking. So they should हाँ. give time to the elder ones. They should spend time with the kids. और सबसे पहले पेरेंट्स को करना पड़ेगा कि मैं अपने बच्चों के साथ आज टाइम स्पेंड करूंगा. हाँ, correct. नहीं, वो तो है ही. Absolutely. Yeah. Wow, wow. So that finishes our rapid fire round. Thank you so Thank much, you. Dr. Harish. We had such an incredible session. I loved every bit of information, and I think all of us who are listening here would realize that how important these small little things are, and little things only create bigger impact. So sometimes we think air as something outside of us, but the real truth is every breath becomes a part of our children. Yes. So this conversation actually reminded me that, and I hope it's reminded all of you that protecting our children lungs is not a luxury. It's a responsibility. It's a It is a daily chore. responsibility. It's a Yes. collective mission. And I love the way you said sustainability with a collective mission. That is so true. मतलब अगर हम नहीं सोचेंगे how we are going to create an impact. Like, to all the parents listening, awareness is just a first step. Small actions create bigger protection. Yes. Yes. So thank you so much, Dr. Thank Harish. you. Thank you Thank you. so Thank much you. for accepting my invite. And I am so thankful that I just messaged you yesterday and you were upfront for it. And I am so thankful. Thank It you. is very sweet of you to Thank just you. say, yes, let's do it. I mean, that's something which you tell me the topic and we'll just jump in. I mean, hats off to you. And I am completely humbled and honored to interview today. And I loved all your insights. Thank you so much for what you're doing, and we loved every bit of it. Thank you so much, Dr. Harish. Thank you so much.
Thank you. Thank you, everyone. Thank you so much for joining in. And we had a great, incredibly great session, which was like 50 minutes. So thank you, everyone, for joining in. And now I'm signing off. Meet you next Wednesday. Take care and happy parenting. Thank you. Thank you.